It's not rare when you find authors like Rashid Kidwai at festivals like this one at Banaras Literature Festival, the third edition. Mr. Kidwai, thank you so much for speaking to One India. First things first, your book, Ballot 10 Episodes That Have Shaped India's Democracy. There are two words that need a lot of attention, democracy and ballot. They are very relevant these days. How do you see them? How important they are? I think they are integral part of our democratic setup, and though the ballot is now become a kind of EVM machine one, Yes. but still it remains the same. And I think this is the biggest sort of strength to our political system, Right. that everybody, regardless of the caste, creed, region you come from, they have a right to vote. And Indian voter is giving a mandate that always surprises. So whether it is, it does not go, we all see in several elections we have seen, and this is what I have tried to document in this book. The 10 episodes, which were the 10 episodes, like rise of Mayawati, rise Yes. of N.T. Rama Rao, the persona of Balasaheb Thackeray as a sort of supreme Cult. like I have written, there was no superpower, there was no superstar in Bollywood, in Yes. Mumbai, so to say. It was Balasaheb Thackeray. In that Right. the kind of respect he commanded at once upon a time. Absolutely. Right from the advent of the third term of Prime Minister Modi, the word democracy found its resonance, not very surprisingly, within the chambers of the Indian Parliament as well. Rahul Gandhi was seen raking up and actually mentioning democracy and constitution quite a lot, and return to ballot papers also. How do you see that? So you see, this is a point of view, and I think this is again what you basically said, that in democracy is the beauty of the system is that you can also question that system. Like it because of the, let's say, EVM, that Rahul Gandhi is there in Lok Sabha, but in that Lok Sabha he is questioning the EVM. Right. So this is a real, whether it is justified or not justified, that's a matter of opinion. Right. See, somebody, a verdict of 49 and 51, like at this present 18th Lok Sabha, has a 53% MPs belonging to the ruling coalition, and 47% belonging to the opposition. I mean, those who are not in the ruling coalition. So what I'm saying is, this is a beautiful system. Yes. That if you have 100 people, assuming 53 are for Mr. Modi and 47 are not for him. Right. So right. this gives a kind of check and balances, and I think that's a real strength of our democracy. Absolutely, that is very aptly put. I would say one final question. I know you have a busy schedule here this evening. Your previous book, Bharat Ke Pradhan Mantri, I have been the proud reader of that book. My kids also go through that. उसमें जवाहरलाल नेहरू के चैप्टर से तो शुरू होता है, प्रधानमंत्री के चैप्टर में ज्यादा आपने लिखा है, कंटेम्प्ररी होने की वजह से लिखा है या जो अचीवमेंट्स हैं उनकी? अचीवमेंट बहुत सारे हैं। देखिए, मुझे लगता है इस देश में अब इस बात का एक निर्णय ले सकते हैं कि 3 प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने भारत, और 4 प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत की मतलब आत्मा को समझा। जैसे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई का और एक उनका लंबा समय से 16 साल प्रधानमंत्री रहे, फिर इंदिरा गांधी लंबे समय तक रही, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, वो एक गठबंधन की सरकारें चलाते रहे, और अब उनकी सरकारें मतलब ज्यादा दिन नहीं चली, लेकिन 3 बार वही प्रधानमंत्री रहे। बल्कि अगर आप मतलब 96 में बने, 98 में बने, 99 में बने, 3 बार, और इसी तरीके से अब नरेंद्र मोदी जी। तो इतने समय तक या इतनी बार बार जो आदमी प्रधानमंत्री बनता है, वो देश की मतलब मानसिकता को समझता है कि लोग क्या चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि, और उनका वर्क इन प्रोग्रेस है, तो इसलिए, और उनकी जैसा हमारे लोकतंत्र में अधिकार होता है, खूबियां और खामियां हो सकता है। देखिए, मेरा हमेशा लिखने का उस किताब का उद्देश्य यही था कि हम उनको, हमारे अपने राजनेताओं को हाड़ मास का नेता समझे। हम कोई वॉशिंग मशीन लेने जाते हैं, फ्रिज खरीदने जाते हैं, टीवी, हम उसकी पूरी रिसर्च करते हैं कि साहब इसमें कौन सी चीज़ अच्छी है, फ्रंट लोडिंग अच्छी है, अपलोडिंग अच्छी है, कैसा अच्छा है, तमाम जो भी टेक्नोलॉजी, या कोई मोबाइल फोन लेने जाते हैं, कोई भी आइटम हम खरीदना चाहते हैं कंज्यूमर को, तो हम उसमें बड़ी छानबीन करते हैं। लोकतंत्र में हम वो छानबीन नहीं करते कि हम अपना कैसा नेता चुन रहे हैं, हमारा विधायक कैसा है, हमारा सांसद कैसा है, हमारे प्रधानमंत्री कैसे हैं। तो ये किताब उसी सोच की वजह से लिखी गई है। बिल्कुल। किदवई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वन इंडिया से बातचीत करने के लिए। राजनीतिक और साहित्यिक क्षितिज पर आप एक माने हुए नाम हैं। इस लिटफेस्ट में आप एज अ रीडर आए, एज अ ऑथर आए, एज अ स्पीकर अभी हमने देखा, क्या सबसे ज्यादा पुल करता है यहाँ? देखिए, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा कि जो हमारे जो देश की जो सभ्यता और कल्चर है, संवाद की एक सोच,
कि आपकी और मेरी हो सकता है कि विचार अलग अलग हों, लेकिन वो हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारा मनभेद नहीं है। और किताब और विद्या के प्रति, ज्ञान के प्रति रुचि, आप देखिए आज भारत और उसका चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल चल रहा है न्यूजीलैंड, लेकिन आप देखिए कि मतलब कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, हजारों और पांचों पंडाल मतलब भरे हुए, तो इसका मतलब कि क्रिकेट के आगे जहां और भी है, तो ये किताबें खरीद रहे हैं, तो किताबें खरीद रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, और युवा बहुत सारे हैं। तो मुझे ये लगता है कि यही चीज है। ये बात मेरा कोई क्रिकेट का मैं अनादर नहीं करना चाहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमारे देश में से कहा जाता है ना, क्रिकेट, राजनीति और फिल्म वो एक तरीके उस का पर चस्का देश ही होता चलता है, है। लेकिन ये लिटफेस्ट भी एक चस्का है। और मुझे लगता है कि आयोजकों को खासतौर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक ही छत के नीचे इतना अच्छा एक भव्य आयोजन किया। और भव्य से ज्यादा एक ये भी नहीं था कि कोई किसी विचारधारा से या किसी व्यक्ति से या किसी से जुड़ा हुआ हो, बल्कि वही जो हमारी, जैसे मैंने कहा कि हमारी जो सभ्यता रही है कि आर्गुमेंटेटिव इंडियन की, मतलब हम बहस मुबाहिसा करते रहे और एक दूसरे शास्त्रार्थ करते रहे, उसी भावना से मैंने देखा यहाँ के ऊपर बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ है। बिल्कुल, राशिद साहब ने जिस तरह से उन चीजों को अभी मेंशन किया जो हमारे आंखों के सामने होते हम नहीं देख पाए, जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि वाली जो बात एक होती है। राशिद साहब बहुत बहुत धन्यवाद फॉर इन दिस बातचीत के लिए। वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट एंड वी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस ब्रॉडकास्ट।